السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الاعراف 12 نمبر 9 رکوع نمبر 7 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ووعدنا، اور ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلۃً 30 رات کا، وأتممناها، اور ہم نے اس کو مکمل کیا، بعشر 7 کے، فتم، پھر پورا ہو گیا، میقاتو مقررہ وقت، ربی ہی اس کے رب کا، 40 لیلۃً 40 رات۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے، میری جانشینی کرو، فی قومی، میری قوم میں، وأصلح، اور اصلاح کرو، ولا تتبع، اور نہ پیروی کرو، اور نہ تم پیروی کرنا، سبیل المفسدین، فساد پھیلانے والوں کے راستے کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 30 رات کا وعدہ کیا۔ 30 رات کا کیوں وعدہ کیا تھا؟ 30 رات کے بعد کیا ملنا تھا؟ 30 رات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کے ہدایت کے لیے اپنی کتاب یعنی تورات عطا فرمانی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، یعنی پورا مہینہ 30 دن آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ یہاں پہ لیلہ کا ذکر ہے، دن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، رات کا ذکر کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دن اور رات کے اکٹھے روزے ہوں، لگاتار روزے رکھنے کا ان کو کہا گیا ہو۔ انبیاء کے لیے وصال جائز ہوتا ہے، یعنی وہ لگاتار روزے رکھ سکتے ہیں، افطار کیے بغیر لگاتار روزے رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح لگاتار روزے رکھتے رہے تھے۔ لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم وصال نہ کریں، یعنی روزے کے ساتھ روزہ نہ ملائیں۔ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے وصال کیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، ان کو کہا تھا میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دن اور رات کٹھا وصال کرنے کا حکم دیا ہو، یعنی وہ لگاتار روزے رکھیں، دن بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور رات بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو 30 دن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ 30 دن روزہ رکھیں، اور اس کے بعد ان کو تورات عطا کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے مکمل کیا اس مدت کو 7-10 کے، یعنی 30 کا کہا تھا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 اور روزے رکھوائے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقررہ وقت جو ہے نا پورا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور کیوں روزے رکھوائے، اس کے بارے میں روایات ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ احادیث نہیں ہے، جو احادیث ہوں گی میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ حدیث ہے۔ اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا تھا نا، 30 روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا تھا، تو انہوں نے پھر مسواک کر لی، یعنی اپنے منہ کو صاف کر لیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاک صاف ہو کے جائیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو روزے دار کی منہ کی بو بہت زیادہ پسند ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ آپ 10 روزے آگے مزید اور رکھیں۔ تو پھر انہوں نے 10 روزے اور رکھے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ روایات ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ حدیث کے مطابق نہیں ہے، لیکن بتایا جاتا ہے روایات میں کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 10 روزے اور رکھوائے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے 40 کی جو مدت تھی نا وہ پوری کر لی، 40 دن کی، تو پھر ہم نے ان کو تورات دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جاتے ہوئے اپنا جانشین بنایا، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نبی بنے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے بھائی کو اپنے پیچھے جانشین مقرر کر کے گئے کہ میرے پیچھے میری قوم کا خیال رکھنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور جو فساد پھیلانے والے ہیں نا ان کی بات نہ ماننا، ٹھیک ہے۔ وَلَمَّا، اور جب جاء موسیٰ، آئے موسیٰ علیہ السلام، لِمِیقَاتِنَا، ہمارے مقررہ وقت کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، قال، کہا، ربی، اے میرے رب، ارنی، دکھا مجھے، انظر، میں دیکھوں، الیک، تیری طرف، یعنی مجھے اس بات کی توفیق دے، مجھے اس قابل بنا کہ میں تیری طرف دیکھ سکوں۔ قال، کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، ہرگز نہیں تم مجھے دیکھو گے، ولیکن انظر، اور لیکن دیکھو، الی جبل، پہاڑ، الی الجبل، پہاڑ کی طرف،
फ़इन इस्तक़र्रा पस अगर वो ठहरा रहा मकाना हो अपनी जगह फ़सौफ़ा पसन करीब तरानी तो मुझे देखोगे फ़लम्मा पस जब तजल्ली की रब्बू हो उसके रब ने लिल जबली पहाड़ के लिए जालहू कर दिया उसको दक्का रिज़ा रिज़ा वख़र्रा और गिर पड़े मूसा अलैहिस्सलाम साइका बेहोश होकर फ़लम्मा फिर जब अफ़ाका हुआ काला कहा सुबहानका तू पाक है तुबतु इलैका मैं रुजू करता हूँ तेरी तरफ व अना और मैं अव्वलुल मुमिनीन पहला मोमिन हूँ पहला ईमान लाने वाला हूँ। इन आयात में ये बताया गया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर गए अल्लाह ताला से हम कलाम हुए उनको तो रात मिली तो उनको ये भी शौक़ हुआ कि मैं अल्लाह ताला का दीदार भी करूं तो उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि अल्लाह जी मैं आपको देखना भी चाहता हूं, यानी मुझे आप इस काबिल बना दें कि मैं आपका दीदार कर सकूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी यानी तुम हरगिज़ मुझे नहीं देख सकते। दुनिया में हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते क्योंकि ये फ़ानी दुनिया है ना, तो हम बाकी रहने वाली ज़ात को इस फ़ानी आँख से नहीं देख सकते, हमारी आँख इस काबिल नहीं है। आखिरत में अल्लाह ताला हमें वो ताकत अता फरमाएंगे, वो तौफ़ीक देंगे जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला का दीदार करेंगे, ठीक है ना। दुनिया में अल्लाह ताला के जलवे को बर्दाश्त करने वाली आँख अल्लाह ताला ने नहीं बनाई हमारी। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा तुम इस पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये पहाड़ अपनी जगह ठहरा रहा ना तो फिर तुम मुझे देख सकोगे। तो फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ पर तजल्ली की, तो जो पहाड़ था ना अल्लाह ताला की तजल्ली को बर्दाश्त ना कर सका। कहते हैं जित छोटी उंगली जितनी आधी है ना उतना अल्लाह ताला ने सिर्फ अभी अपनी तजल्ली का नूर डाला था उस पर, तो वो रीज़ा रीज़ा हो गया और जो मूसा अलैहिस्सलाम थे वो बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब उनको होश आया तो उस वक़्त उन्होंने ये अल्फाज कहे कि अल्लाह ताला तू पाक है, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ, मैं पहला ईमान लाने वाला हूँ, यानी मैं बग़ैर देखे आप पर ईमान लाने वाला हूँ। ये अल्फाज कहे थे। इसके बारे में एक हदीस भी है सही बुखारी की, मैं आपको उसका मफ़हूम बता देती हूँ। इस तरह से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान महशर में जब अल्लाह ताला फ़ैसले के लिए नाजिल होंगे ना, फ़ैसले के लिए अल्लाह का नज़ूल होगा तो सब लोग जो है ना बेहोश हो जाएंगे और सबसे पहले जिसको होश आएगा ना वो मैं हूँगा, पहला शख्स मैं हूँगा जिसको सबसे पहले होश आएगा। फिर मैं देखूँगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का पाया थामे खड़े हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे पहले ही होश में आ गए या उन्हें कोहे तूर की बेहोशी के बदले में मैदानी महशर की बेहोशी से मुस्तस्ना रखा गया, यानी वो बेहोश ही नहीं हुए। तो इस तरह की एक हदीस है जिसका मफ़हूम मैंने आपको बताया। क़ाला कहा या मूसा ए मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका बेशक मैंने तुझे मुंतखब कर लिया है अलन नासी लोगों पर, यानी तमाम लोगों में से, जहान के तमाम लोगों में से मैंने तुम्हें बरगज़ीदा किया है, हम कलाम होने के लिए चुन लिया है, अपना पैगम्बर बनाया है। बिरिसालती साथ अपनी रिसालत के, व बिकलामी और साथ अपने कलाम के, फ़ाखुज़ पस लो पकड़ो, माँ आताई तुका जो मैंने तुझे दिया है, वकुन और हो जाओ मीना शाकिरीन शुक्रगुज़ारों में से। अल्लाह ताला ने क्या दी थी उनको? तौरात दी थी कि अल्लाह ताला कहते हैं मैंने तुम्हें ख़ास किया है, बरगज़ीदा किया है अपनी रिसालत और अपने कलाम के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी है ना, वो रसूल हैं जिनके साथ अल्लाह ताला ने कलाम किया बग़ैर किसी वास्ते के, यानी फ़रिश्ते वगैरह के बग़ैर अल्लाह ताला ने ख़ुद कलाम किया। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं जो मैंने तुम्हें तौरात दी है ना उसको पकड़ो और शुक्रगुज़ारों में से हो जाओ, यानी शुक्र करो। व कतबना और हमने लिख दिया था लहू उसके लिए फ़िल अलवाही तख्तियों पर मिन कुल्ली शैइन हर एक चीज़, मौइज़तन व तफ़सीलन नसीहत और तफसील लिकुल्ली शै हर चीज़ की। फ़ख़ुज़हा पस पकड़ो इसको बिकुव्वतिन साथ कुव्वत के, व अमर और हुक्म दो कौम का अपनी कौम को, या खुज़ू वो पकड़ें भी ahsaniहा इसके अच्छे को, यानी अच्छी तरह से इस पर अमल करें, ख़ुद भी अमल करो अपनी कौम से भी कहो इस पर अच्छी तरह से अमल करें। साउरी कुम दारल फासिकीन अनकरी मैं दिखाऊंगा तुमको घर फासकों का, नाफरमानों का, यानी जो नाफरमानी करेंगे, जो इस पर अमल नहीं करेंगे, फिर मैं तुम्हें उनका अंजाम, उनका घर दिखाऊंगा। सअस्रिफु अन आयाती यल्लज़ीना यतकब्बरूना फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़
सअस्रिफु अनकरीब मैं फेर दूंगा अन आयाती अल्लज़ीना अपनी आयात से उन लोगों को जो यतकब्बरूना फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़ जो तकब्बुर करते हैं ज़मीन में ना हक़। किसी को तकब्बुर का हक़ नहीं है, बड़ाई जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है ना। तो जो भी कोई तकब्बुर करता है तो वो नाहक तकब्बुर कर रहा होता है, उसको उसका हक़ नहीं होता। अल्लाह ताला कह रहे हैं तकब्बुर करने वालों को ना मैं अपनी आयात पर ईमान लाने की या उस पर अमल करने की तौफीक नहीं दूंगा, उनसे फेर दूंगा। वइन यराउ कुल्ला आयत ला युमिनु बिहा, और अगरचे वो देख लें हर निशानी ना वो इस पर ईमान लाएं। वइन यराउ, और अगर वो देखें सबील रुश्दी हिदायत का रास्ता ला यत्तखिज़ूहु, ना वो उसको पकड़ें सबीला राह, हदायत का रास्ता देखेंगे तो उस पर नहीं चलेंगे। वइन यराउ सबील गय्यि यत्तखिज़ूहु सबीला, और अगर वो देखें सरकशी की राह पकड़ेंगे उसको राह, यानी उस रास्ते पे चलेंगे जो गुनाह वाली है, जो सरकशी करने वाली है, और हदायत का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। ज़ालिका, ये भी अन्नहुम, बावजह इसके कि बेशक वो कज़्ज़बू, उन्होंने झुठलाया भी आयातिना, हमारी आयात को, वो वकानू, और वो थे अनहा उससे गाफिलीन गाफिल। वल्लज़ीना कज़्ज़बू, वो लोग जिन्होंने झुठलाया भी आयातिना, हमारी आयात को, वलिक़ाइल आखिरती, और आखिरत की मुलाकात को, हबितत अमालुहुम, तबाह हो गए उनके अमाल। हल युजज़ौना, नहीं वो बदला दिए जाएंगे, इल्ला मगर, मा कानू यामलून, मगर वो जो थे वो अमल करते। ये जो आखिरी आयत आपने पढ़ी है ना, ये बहुत अहम है, इनको अच्छी तरह से समझ लें। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं अपनी आयत की समझ, अपने हदायत, सीधे रास्ते की तरफ हदायत उन लोगों को नहीं दूंगा जो तकब्बर करते हैं। ठीक है, नंबर 1 तकब्बर करते हैं नाहक, दूसरा ये कि वो अल्लाह की आयत को झुठलाते हैं, और तीसरा उससे गफलत बरतते हैं। ठीक है, तो ये जो काम करते हैं ना, ये 3 अल्लाह ताला कहते हैं फिर सज़ा मैं उनको देता हूँ कि उनको अपनी आयत से फेर देता हूँ, यानी उनको ईमान लाने की, उनको नेक अमल करने की तौफीक नहीं देता फिर। तो ये अल्लाह ताला ने वजूहात बताई हैं। तो हर एक को गौर करना चाहिए कि उसके अंदर इसमें से तो कोई ऐसा अमल नहीं है जो वो करता है, या किस वजह से उसको नेकी के काम करने की तौफीक नहीं मिल रही। ज़रूर उसके अंदर इसमें से कोई ना कोई बुराई पाई जाती होगी। तो ये नहीं सोचना कि ये तो अल्लाह ताला ने काफ़रों के बारे में आयत नाज़िल की हैं। ये कुरान हर एक के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए हदायत का ज़रिया है, और क़यामत तक जितने लोग आएंगे ना, उन सब ने इसी से हदायत हासिल करनी है। तो इसमें से देखा करें कि आपके लिए समझने में क्या है, इस लेसन में आपके लिए क्या समझने के लिए अल्लाह ताला ने बताया है, क्या आपके लिए इबरत है, इसमें क्या सबक आपको मिल रहा है इस लेसन को पढ़ के। तो ज़रूर गौर कीजिए। आगे फिर ये जो आखिरी आयत है ना, इसमें अल्लाह ताला ने अंजाम बताया। जो फिर लोग ऐसा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनका फिर जो सारे अमाल होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे, उनको कोई उनके अमाल का बदला नहीं मिलेगा। जो अल्लाह की आयत को झुठलाते हैं और आखिरत की मुलाकात को, आप तो कहेंगे हम तो नहीं झुठलाते, हम तो मानते हैं अल्लाह की आयत को और आखिरत की मुलाकात को, हम तो मानते हैं, लेकिन हम इत्कादी तौर पर मानते हैं, हम अमली तौर पर इनकार कर देते हैं। अगर हर एक इंसान को ये अच्छी तरह से इल्म हो जाए ना, ये इस बात का पुख्ता यकीन हो जाए कि उसने मरना है, अपने अमाल का अल्लाह के आगे जवाबदेह होना है, तो उसके अमाल सारे संवर जाएं। तो हम इत्कादी तौर पर तो मुसलमान हैं, लेकिन हम अपने अमल से इनकार कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को आपने दूर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।